चलो फर्स्ट वन देखो बेटा. You know that light propagates in the small packets of energy called as what? Photons. The energy of photon कैसे लिखते हैं बेटा? फॉर्मूला याद है? Energy of photon will be equal to E is equals to energy of your photon. E is equals to your H into your frequency. Isn't it? एक मिनट बेटा, थोड़ा सिस्टम में हो रहा है. So energy will be equal to E is equals to H into nu लिखो या H into C divided by your lambda. Rest mass of photon कितना होता है बेटा? Rest mass of photon. Rest mass of your photon कितना होता है? 0. Momentum of photon कितना होता है बेटा? Momentum of photon. Momentum of photon is equals to your H into nu divided by your C. Isn't it? Sorry, H into nu. H into nu हो गया यहाँ पर और HC by your lambda. Isn't it? That is nothing but of your H by lambda. Momentum of your photon. Isn't it? How do you calculate the number of photons emitted per second? With important formula already पूछ चुका है basically. How do you calculate number of photons per second? Number of photon per second, which is emitted by a source. Emitted by a source of power P. Of power P. कितना होता है बेटा याद है? Number of photons N will be equal to power divided by energy. Energy का formula HC divided by lambda. Yeah, this will be equal to P into lambda divided by H into C. Very good. Isn't it? Very important formula beta. Number of photons emitted per second by a source of your power. Power is equal to what beta? Energy divided by your time. ठीक है ना? So N is equals to your P divided by energy or P into lambda divided by H into C. So this was something which you should be remembering about your energy of photon. इसके बाद next part is photoelectric effect. Photoelectric effect. चलिए, photoelectric effect क्या होता है बेटा? याद है सभी को? The emission of electron from metal surface when a light of suitable frequency has been incident. So instance photoelectric equation का formula बताइए. Energy will be equal to your work function plus of your maximum kinetic energy. यानी H into your nu will be equal to your H into your nu naught plus kinetic energy half into M into your V max square. Or this can be taken as of your HC divided by lambda is equals to your HC divided by lambda naught plus of your half into M into your V max square. Isn't it? तो अगर हम लोग इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं ना, विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट photoelectric current also increases, but maximum kinetic energy will always remains for me the same. ये बात अपने को याद रखना है. अगर हम लोग photoelectric current increase कर रहे हैं तो उसका intensity भी increase होगा. So with increase in intensity of incident light, photoelectric current also increases, but maximum kinetic energy of electrons will remain same. उसी तरह से with increase in frequency of incident light, जैसे जैसे अपन frequency बढ़ाते हैं light की, photoelectric current will not change, but maximum kinetic energy of photoelectrons will increase. ये theoretical points है, अपने को याद रखना है basically. मैं यहाँ पर फिर भी लिख रहा हूँ, देखो बेटा. With increase in intensity, with increase in intensity, photoelectric current increases. Photoelectric current increases, but maximum kinetic energy जो रहती ना, maximum kinetic energy of electrons remains the same. ये change नहीं होती, remains the same. इतनी point अपने को याद रखना है इसमें. उसी तरह से एक और एक point भी याद रखना है इसी तरह से. With increase in frequency, with increase in frequency, यानी जैसे जैसा light की frequency आप change करते जाओगे, with increase in frequency of your incident light, photoelectric current
will not change. Photoelectric current will not change, but maximum kinetic energy जो है, maximum kinetic energy of photoelectrons or photoelectric current increases. ये थियरी पॉइंट से कंपल्सरी याद रखना है बेसिकली, ठीक है ना। उसी तरह से डी ब्रोगली वेवलेंथ के फॉर्मूलेस, डी ब्रोगली वेवलेंथ के फॉर्मूलेस, ओके। वेरी ह्यूज वेटेज है ना बेटा, तो जितना बार हो सका उतना रिवाइज करो। ऐसा मत समझो कि मेरे को आता है तो फिर भी ओवर कॉन्फिडेंटली लोअर लोग करें। इसके बाद जल्दी से हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। अगर आईडी बंद हो गया तो फिर आप लोग रिजॉइन कर लीजिए बेटा। सो डी ब्रोगली वेव्स में क्या होता है, फिर पार्टिकल ऑफ मास m is moving with a speed v, then de Broglie wavelength is given by the formula lambda is equals to h divided by your m into your v। और इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, lambda is equals to h divided by under root of m into v can be written as of your 2 into mass into kinetic energy of that particle। याद है ना सभी को, बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक पॉइंट है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं रुदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ओके। इसके अंदर देखो बेटा, फर्स्ट वन साइज ऑफ योर न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकालते हैं बेटा, साइज ऑफ योर न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू योर और मान के चलो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ योर अप्रोच अगर निकाल रहे हैं हम लोग। एनर्जी हम लोग जिसकी लिखते हैं बेसिकली kinetic energy or the potential energy 1 by 4 pi epsilon naught into z into your e electron और alpha particle का charge divided by the point where it is being diverted back। जैसा एक अल्फा पार्टिकल हम लोग ने एक एटम पे डाला तो सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस होता है, तो इसीलिए एट अ सर्टेन पॉइंट इट विल कम बैक डिविएट बाय 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 180 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आर नॉट इज नोन एज क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। आर नॉट की वैल्यू हो गई 1 by 4 pi epsilon naught into 2 times of your z into e square divided by your potential energy, ठीक है ना। और इसके अंदर और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जो आप लोग को याद रखना, हाउ डू यू कैलकुलेट नंबर ऑफ योर अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड, अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट एन एंगल मान के चलो सम phi or theta what it may be, okay, by a nucleus, number of अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड बाय एट एन एंगल ऑफ योर phi by a nucleus। यानी मान के चलो अगर ये अल्फा पार्टिकल है, मैंने अल्फा पार्टिकल को कुछ स्पीड से मैंने इसको इस तरह से फेंका तो गया 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 गया, यहाँ पर कहीं पर अपने पास न्यूक्लियस था z into your e। एक पॉइंट पे आने के बाद तो क्या करेगा, डिविएट कर जाएगा, सो इट विल ट्राई टू गो इन दिस डायरेक्शन। तो ये बनाएगा यहाँ पर कुछ एंगल दैट इज नथिंग बट phi, isn't it? So कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें डिविएट हो जाएंगे, तो n of your phi is directly proportional, sorry inversely proportional to 1 by sin to the power of 4 into phi divided by 2, ठीक है ना। ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है तो याद रख लीजिए एज पर एनसीईआरटी। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड at an angle phi by a nucleus is inversely proportional to 1 by sin to the power of 4 into phi by 2 particulation। और बोथ मॉडल तो याद है अभी सभी लोग को बेसिकली, हाँ चलिए नेक्स्ट वन इज बोर्स मॉडल। यानी जो कोर एरिया होता है ना टू डू द न्यूमेरिकल्स, वो पूरे पार्ट में रिवाइज करवा दे रहा हूँ। यू नो दैट एवरी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट विदाउट रेडिएटिंग एन एनर्जी। तो इसके लिए हम लोग फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, एनर्जी ऑफ दैट वन इज 1 by 4 pi epsilon naught into z into e square divided by r will be equal to your m into v square divided by r, है कि नहीं। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अतराफ अपने पास जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन विल मूव इन ए सर्कुलर ऑर्बिट और ये हो गया रेडियस r। तो एनर्जी ऑफ दैट वन मस्ट बी बैलेंसिंग योर सेंट्रीपिटल फोर्स। सो हाफ ऑफ 1 by 4 pi epsilon naught z into e square divided by r is equals to m into v square by your r। Next one is quantization of your orbit, that is m v into your r is equals to n into your h divided by 2 into your pi, where n value will be equal to how much beta, 1 2 3 go on। उसी तरह से क्वांटाइजेशन ऑफ योर एनर्जी अगर हम लोग लिख रहे हैं तो h into your nu will be equal to your E2 minus of your E1, याद होगा बेसिकली, isn't it?
and mass of the electron which has been revolving will always remains constant बेटा, mass change नहीं होगा इसके अंदर, ये बात अपने को याद रखना है, isn't it? अब इसमें थोड़े डायरेक्ट फॉर्मुलेस होते हैं, याद होगा आप लोगों को, रेडियस ऑफ योर nth ऑर्बिट इज इक्वल्स टू 0.53 into n square divided by your z, isn't it? And unit of this one is your angstroms. And velocity of this one will be equal to c by 137 into z by your n meter per second. And another very important relation, that is total energy. Negative of your total energy will be equal to your kinetic energy, or that will be equal to negative of potential energy divided by 2. Very important relation बेटा, इस पे न्यूमेरिकल्स बनने के चांसेस बहुत होते हैं, तो प्लीज ट्राई टू रिवाइज इट. आना अलग बात है, एग्जामिनेशन हॉल में रिवीजन भी याद आना वो इंपॉर्टेंट होता है. तो तीनों के भी रिलेशंस लिख दिया मैंने. देन total energy in nth orbit will be equal to your minus of your 13.6 into z square divided by your n square, and unit होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वैसे भी केमिस्ट्री में भी बहुत बार आता है, तो आप लोग को याद होना चाहिए. So I hope you know this one. Another very famous formula, that is about your wave number. That is 1 by lambda is equals to your r into your z square into 1 by your n1 square minus 1 by your n2 square. तो ये हो गया wavelength. 1 by lambda is equals to your r into z square 1 by n1 square minus of your 1 by n2 square. Spectrum of hydrogen atom अगर आपको याद होगा बेसिकली, जल्दी से बता दीजिए. Spectrum of your hydrogen atom. First one is Lyman series, which lies in your ultraviolet region. Next one is about your Balmer series. This also lies in your visible region. And Passion series, this lies in your infrared region. Fourth one is your bracket. This also lies in your infrared. And fifth one is your Fun series. And this also lies in your infrared. इसके लिए अगर मैं वैल्यूज लिखूं बेसिकली लाइमन सीरीज के लिए, कहां से जस्ट स्टार्ट हो रहा है, n1 will be equal to 1 and n2 will be greater than or equal to 2. इसके लिए n2 is equals to, sorry n1 ही होगा ना, sorry n1 is equals to कहां से स्टार्ट होगा 2 and n2 will be greater than of your 3. And for passion series n1 is equals to 3. Bracket series n1 is equals to 4 and fun series n1 is equals to 5. And यहाँ पर n2 value will be greater than or equal to 4 and n2 value is greater than or equal to 5 and n2 value is greater than or equal to 6. Isn't it? What are the limitations of Bose model beta? It cannot explain the structure of hydrogen like an atom, and it was unable to explain the fine spectral length. That are the two limitations of the Bose model जो आप लोग को याद रखनी है basically. और थोड़ा बहुत phosphorus and fluorescence का concept है, like certain substance emits the visible light with high frequency radiations, and if the emission continues after a source of excitation removes, that is called as phosphorus, and if it is not, then it is called as fluorescence. आपको याद होगा ये केमिस्ट्री में भी आया हुआ पॉइंट है, फिर भी वो थोड़ा बहुत याद रख लीजिए फ्लोरेसेंस के बारे में और फॉस्फोरेसेंस के बारे में. एनसीईआरटी एक बार निकाल के पढ़ लीजिए. फॉस्फोरेंस इसको बोलते हैं इफ देयर इज एन एमिशन इवन आफ्टर सोर्स ऑफ एक्साइटेशन, आपने निकाल भी दिया तो फिर भी अगर वो एमिट कर रही है तो दैट इज कॉल्ड एज ऑफ योर फॉस्फोरेसेंस. फ्लोरेसेंस मतलब अगर सोर्स रिमूव किया, अगर वो एमिट नहीं कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज ऑफ योर फ्लोरेसेंस. ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट वन इज फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी. फर्स्ट excitation potential. First excitation potential represented by potential V1. V1 is equals to E2 minus of E1 divided by your E. ठीक है ना, बेसिक फॉर्मूला है, याद रख लीजिए. दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसी तरह से और एक जो पार्ट पूछता है इस पे आयनाइजेशन के ऊपर पूछता है क्वेश्चंस, व्हिच इज आयनाइजेशन पोटेंशियल. आयनाइजेशन पोटेंशियल इज राइट नाउ फॉर मी एनर्जी फ्रॉम इंफिनिटी से लेके एनर्जी फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट से आए and divided by your charge of your electron, that is almost like 13.6 electron volt. Electron volt में E चले जाएगा तो वोल्ट ही आ जाएगा for हाइड्रोजन. इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है ना बेटा, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाके 13.6 वोल्ट आ जाएगा. ठीक है ना, ये छोटा सा पॉइंट अपने को याद रखना. The next one is about your X-rays. ज्यादा कुछ नहीं एक्सरेस में, हार्ड एक्सरेस सॉफ्ट एक्सरेस का थोड़ा कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए.
X-rays ranges from your 1 angstroms to your 100 angstroms. When fast moving electron strikes a target of high melting point and atomic mass, X-rays have been produced. ये तो मालूम है आप लोग को. Intensity of X-rays is proportional to the filament current. यानी जैसे जैसे filament current बढ़ेगा वैसे वैसे intensity भी बढ़ जाएगी. Penetrating power is proportional to potential difference across the filament. यानी जैसे जैसे आप power बढ़ाओगे वैसे वैसे उसका penetrating power भी बढ़ेगा. अगर मैं इसमें बात करूं X-rays of wavelength greater than 4 angstroms are called soft X-rays. Are called soft X-rays. Okay, and X-rays of wavelength less than or equal to your 4 angstroms are called hard X-rays. Are called hard X-rays. इतना बेसिक पॉइंट अपने को याद रखना है बेसिकली, ठीक है ना. तो अब एक्सरे स्पेक्ट्रम के अंदर कुछ भी नहीं होता है, जैसा आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो वही तरह से होती है बेसिकली. तो यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है एक्सरे स्पेक्ट्रम. बेसिक फॉर्मूला जैसे याद रखना है, जैसे एनर्जी लिखते हैं ना उसी तरह से लिखना है बेसिकली, ठीक है ना. कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द डिसेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जैसा मान के चलो अपने पास सेंट्रल पे क्या होता है, न्यूक्लियस, इसके अतराफ ऑर्बिट्स और इसमें इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे राइट ना, which have been revolving. Roughly लिख रहा हूँ. So first one is nothing but of your, ये हो गया nucleus, this one is cation, this is L, this is M and this is your N, ठीक है ना. If there are some electrons present in this one, तो मान के चलो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके ऊपर से अगर हायर ऑर्बिट से नीचे आ गया, तो when it is coming right now it will give you a certain amount of energy. उसी तरह से अगर ये वाला यहाँ से एक्साइट होके अगर नीचे आ रहा है बेसिकली, ओके, मान के चलो ये ऑर्बिट्स यानी L से लेके अगर M को आया, then also here it emits certain energy, ठीक है ना. तो मैं बात करता हूँ, अगर एक पर्टिकुलर एनर्जी निकल रही है फ्रॉम पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पर्टिकुलर ऑर्बिट, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, कैरेक्टरिस्टिक्स. कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा कब आएगा बेटा, दे हैव बीन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द डिसेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मान के चलो हर ऑर्बिट से कंटिन्यूअसली जा रहा है ऐसा कुछ बेसिकली टच कर लेते हुए, देन दैट इज कॉल्ड एज ऑफ योर कंटिन्यूअस. अगर पर्टिकुलर ऑर्बिट से हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, दैट विल गिव मी द कैरेक्टरिस्टिक्स. दैट मींस कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द नॉकिंग ऑफ बाउंड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इनरमोस्ट ऑर्बिट एंड वैकेंसी इज बीन क्रिएटेड. सो इट इज बीन फिल्ड बाय योर either फ्री इलेक्ट्रॉन्स और द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम योर हायर ऑर्बिट. अब मान के चलो यहाँ पर मैंने जो लिखा था इसको, एनर्जी ऑफ योर हायर ऑर्बिट से मान के चलो अपने को L से आ रहा है, EL से मान के चलो EK को आया, सो दैट विल बी इक्वल टू योर H इनटू योर फ्रीक्वेंसी ऑफ योर, ये हो गया न्यू ऑफ K अल्फा लिख सकता हूँ इसको, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आई, दिस वन विल बी K अल्फा, और इसमें से यहाँ पर जो एनर्जी आई दैट विल बी इक्वल टू K बीटा, ठीक है ना. अगर एनर्जी हम लोग को M ऑर्बिट से आ रही है, M ऑर्बिट से आके अगर K ऑर्बिट के ऑक्युपाई कर रही है, देन इट विल बी H इनटू योर फ्रीक्वेंसी ऑफ योर K बीटा, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. हायर ऑर्बिट L ऑर्बिट से अगर K ऑर्बिट को डेवलप हुआ है, एन इलेक्ट्रॉन व्हिच इज कमिंग फ्रॉम योर L ऑर्बिट टू योर K, तो एनर्जी जो लिबरेट होगी दैट विल बी H इनटू न्यू ऑफ K अल्फा. अगर M से K को आ रहा, H इनटू न्यू इनटू K बीटा, ऐसा लिख लेते चले जाइए. एनर्जी ऑफ योर एक्सरेज कैसे लिखते हैं बेटा, जैसे जनरल एनर्जी ऑफ फोटोन लिखते हैं ना, वही तरह से होती है बेसिकली. यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ फिर भी, एनर्जी ऑफ एक्सरे, energy of your X-ray will be equal to H into nu, or that will be equal to HC divided by lambda. Okay. अगर mass of X-ray अपन को निकालना है, mass of your X-ray, जिसको डायनामिक मास भी बोलते हैं, so that will be equal to your H into nu divided by C square, or that will be equal to H divided by C into lambda. है क्या ना, E is equal to your MC squares, ठीक है ना. वहां से निकाल दीजिए, that will be the same relation. अब यहाँ पर एक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पूछता है बेटा, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरेज, यानी मिनिमम वेवलेंथ जहां से अपने को एनर्जी लिबरेट होती है. लैम्डा मिनिमा इज इक्वल्स टू HC डिवाइडेड बाय EV, यानी दैट विल बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय योर पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम. क्या 12400 भी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना. बेसिक फॉर्मूला है, याद रख लीजिए.
HSE divided by your E into V. ठीक है, एनर्जी लिख रहा हूँ बेटा, ये एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बेसिकली, ठीक है ना। नेक्स्ट वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, केमिस्ट्री में आप लोग ये पढ़ चुके हो बेसिकली, दैट इज अबाउट योर ब्रैग्स लॉ। याद है फॉर्मूला, किसी को याद है ब्रैग्स लॉ का? 2d into your sin theta, मैक्सिमा के लिए n into lambda. So 2d sin theta is equals to n into your lambda, where n value starts from your 1, 2, 3 go on. उसी तरह से इंटेंसिटी अगर निकाल रहे हैं हम लोग एक्सरेस का, इंटेंसिटी ऑफ एन एक्सरे आफ्टर पासिंग थ्रू ए मीडियम ऑफ थिकनेस t will be I is equals to I naught exponential to the power of minus k into your x. Intensity of your x-rays after passing through a medium of thickness, कुछ thickness में अगर दे रखा, x is nothing but here thickness, x is your thickness. t से भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है basically, so that also you can use for doing the numericals related to this one. ठीक है ना बेटा? चलो वेरी गुड। और थोड़े शॉर्टकट्स जो याद है मुझे वो लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, और टिप्स बन के चलो जो कंपलसरी याद भी होनी चाहिए। फर्स्ट वन, इंटेंसिटी ऑफ योर फोटोन इज इक्वल्स टू एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या इसको हम लोग बोल सकते हैं पावर डिवाइडेड बाय एरिया, क्योंकि एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम विल बी द पावर, इजंट इट? पर पॉइंट सोर्स के लिए अगर हम लोग लिख रहे हैं पर पॉइंट टू सोर्स intensity will be equal to power divided by 4 pi into your r square. उसी तरह से इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन सोर्स, पर लाइन सोर्स के लिए अगर हम लोग लिख रहे हैं इंटेंसिटी, then that will be equal to your power divided by 2 pi into your r. ठीक है ना। रेडिएशन के फोर्सेस फॉर्मूला याद है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बॉडीज वगैरह के लिए, वो भी अपने को याद रखनी है बेसिकली। और एक इंपॉर्टेंट एरिया आता है रेडिएशन के फॉर्मूलेस, कोर फॉर्मूलेस पूरे में लिखा रहा हूं बेटा। अगर मान के चलो कोई एक रिफ्लेक्टिंग बॉडी है यहाँ पर, जैसा मिरर वगैरह, उस पर अगर हम लोग ने लाइट डाला इस तरह से, isn't it? So we are incidenting the light. So there are options that it can reflect it or it can observe it. इसका मान के चलो एरिया ये है, isn't it? For perfectly reflecting bodies अगर हम लोग बात कर रहे हैं, और perfectly observing body के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो बेसिक फॉर्मूलेस आते हैं बेसिकली। सो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ भाई, for perfectly reflecting surface, for perfectly reflecting surface, force will be equal to your 2 into your power divided by your c. That is equals to 2, power will be equal to how much beta? Intensity into your area divided by c. पावर के लिए 2 टाइम्स आता है। अगर ऑब्जर्विंग के लिए बात करें, for perfectly observing surface, for perfectly observing surface, f value will be equal to I into your A divided by your C. ये दो फॉर्मूले स्टैंडर्ड फॉर्मूले से याद रखनी है बेसिकली। अगर कोई एंगल पे आ गया तो वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, isn't it? When radiations of intensity capital I at an angle theta आ गया मान के चलो विथ नॉर्मल, तो ऐसा कुछ रफली याद रख लीजिए। रे ऑफ लाइट ऐसा गिर रही है इस तरह से, यानी नॉर्मल से एंगल बना रही है थीटा, तो एक जनरल फॉर्मूला बन जाता है इसका, याद होगा तो अगर आप लोग को, F is equals to your intensity into area A into 1 plus R. R is known as of your coefficient of reflection, isn't it? For perfectly reflecting के लिए R 1 होती है और observing के लिए 0 हो जाती है, into your cos square theta divided by your C. ये जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। नॉर्मल के लिए थीटा कितना होता है? 90 डिग्रीज, ठीक है, 0 डिग्रीज हो जाएगा। cos 0 will be equal to how much for me? 1, और रिफ्लेक्टिंग के लिए R की वैल्यू 1, तो 2i into your 2 into I into A divided by C आ जाएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हो बेसिकली उसके लिए, ठीक है ना। चलो उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी थोड़े शॉर्टकट फॉर्मूलेस हैं, आप लोग को याद होंगे कि नहीं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पर लिखते होगा फिर, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन
12.27 divided by root of your V angstroms, isn't it? Shortest wavelength of an X-rays लिखा मैंने अभी by divided by longest wavelength will be equal to how much for me beta? Longest wavelength lambda longest per X-rays कितना होता है बेटा? Infinity. Okay, और HC की वैल्यू याद रख लो for doing the numericals in energy. HC value will be equal to 2 into 10 to the power of minus 25 joule meter. ठीक है ना? तो ये बेसिक क्वेश्चन से, ये बेसिक पॉइंट से आपने को याद रखना है टू डूइंग द न्यूमेरिकल्स. एक छोटा सा न्यूमेरिकल करा देता हूँ, उसके बाद डायरेक्टली हम लोग प्रॉब्लम्स चले जाएंगे. मान के चलो फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ एक्सरेस emitted by an X-ray tube operating at 30 kilovolt. फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, lambda minima is equals to your 1 2 3 4 5 divided by potential unit angstroms. यानी 1 2 3 4 5 divided by potential is 30 kilovolt, यानी 30 into 10 to the power of 3. इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा. हाँ, c is the speed of light बेटा. क्लियर है? कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, सो प्लीज ट्राई टू डू दैट क्वेश्चन. और एक छोटा क्वेश्चन देख लीजिए बेटा. मान के चलो if is asking what is the angular momentum, what is the angular momentum of electron in Bohr's hydrogen atom, whose energy is minus 3.4 electron volt. चलो बताइए जल्दी से. ये एंड हो रही है बेटा 10 मिनट में, फिर रिजॉइन कर लीजिए प्लीज. तो एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है? माइनस ऑफ 13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए z की वैल्यू मैंने 1 ले लिया. तो इसमें एनर्जी दे रखी है मेरे को माइनस 3.4, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर. ठीक है ना? तो n स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही देखिए बेटा, n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13.6 डिवाइडेड बाय 3.4. 3 4 12, यानी अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है देखिए, स्क्वायर हो जाएगा 4 यानी 2. n स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4 और n की वैल्यू आ जाएगी 2. तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आता है इलेक्ट्रॉन के लिए? L इज इक्वल्स टू n इंटू h डिवाइडेड बाई 2 पाई. तो ये हो गया मेरे पास n की वैल्यू 2 इंटू h डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई. 2 चले गया, तो इट इज योर h डिवाइडेड बाई पाई. आगे बात समझ में? ऐसे वाले मॉडल से. और एक इंपॉर्टेंट मॉडल है बेटा, ये भी देख लीजिए एक बार. मान के चलो सभी लोग एक पेपर लेके ट्राई करिए, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं. द वेवलेंथ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस के अल्फा लाइन emitted by a hydrogen like element, is 0.32 angstroms. Calculate the wavelength of K beta line emitted by the same element, हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट. ठीक है ना? अल्फा मतलब कहां से आता है बेटा? फर्स्ट ऑर्बिट के. बीटा मतलब एल, ऐसा. ठीक है ना? हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए वेवलेंथ का फॉर्मूला तो याद है आप लोगों को, जल्दी से बताइए क्या है? पर हाइड्रोजन लाइक एटम, फॉर्मूला बताइए वेव नंबर का. 1 by lambda is equals to z square into your r into 1 by n final square minus 1 by n initial square. फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ऐसे याद रख लीजिए. तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर फॉर के अल्फा लाइन, 1 by
lambda of your k alpha is equals to z square into your r divided by 1 square minus 1 by 2 square. अल्फा के लिए कहां से आता है? एल से लेके के तक. बीटा के लिए एम से आ जाएगा. तो ये कि इसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है देखिए बेटा. दिस विल बी 3 into z square into your r divided by your 4. ठीक है ना. For k beta line for your k beta line 1 by lambda k beta is equals to, again this is z square into r into final आएगा फिर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए ही. इनिशियल कहाँ आ जाएगा? थर्ड ऑर्बिट से लिए 3 स्क्वायर. तो ये बन गया मेरे को 8 into z square into r divided by 9. So from 1 into I can write, इसको मैं ले रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इसको ले रहा हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2. So from 1 into 2 I can write lambda of your k beta divided by wavelength of k into your alpha will be equal to 3 by 4 divided by 8 by 9. This will be तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 into 9 divided by 4 into your 8. तो कितना हो जाएगा? 3 9s are 27, 4 8s are 32. 27 divided by 32. तो मुझे पूछ रहा क्या है? लैम्बडा ऑफ योर के बीटा कितना होगा? सो दैट विल बी इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 32 इनटू वेवलेंथ ऑफ योर के ऑफ योर अल्फा. वो कितना दे रखा है प्रॉब्लम में बेटा? देख लो एक बार प्रॉब्लम में कितना दे रखा है. के ऑफ योर alpha line emitted by hydrogen element is given as 0.32 angstroms. यानी this will be equal to your 27 divided by 32 into 0.32. इसका कैलकुलेशन कर लीजिए. That will give me the answer. ठीक है ना? Is it clear for everyone? चलिए एक और एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन है जो आप लोग को याद होना चाहिए. मॉडल characteristic spectra of X-ray is shown in figure. Is shown in figure, which is K alpha and K beta. K alpha K beta को फाइंड आउट करना है बेटा. ये ग्राफ दे रखा है इस तरह से अपने को. एक्स एक्सेस ये वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस पे आई और यहाँ पर लैम्बडा. मिनिमम वेवलेंथ से स्टार्ट हो रही है यहाँ पर ऐसा कुछ जाएगा, फिर यहाँ पर बढ़ा, फिर यहाँ पर आया, फिर ऐसा गया, फिर मैक्सिमा आया, फिर ऐसा गया, फिर मिनिमम. तो यहाँ पर एक लाइन है 1 और यहाँ पर एक लाइन है 2. तो अब इसके लिए बताइए. कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रम इज शोन इन फिगर विच इज के अल्फा एंड विच इज के बीटा. दोनों में कौन अल्फा है कौन बीटा. तो वेवलेंथ का फॉर्मूला अपने को मालूम है. लैम्बडा इज इक्वल्स टू hc डिवाइडेड बाय डेल्टा ई. एनर्जी डिफरेंस किसके लिए ज्यादा किसके लिए कम है ये निकालना आपने को. सिंस एनर्जी डिफरेंस ऑफ योर के अल्फा इज लेस देन के बीटा है कि नहीं. हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट को जा रहा है. तो आई कैन से दैट energy of your k alpha is lesser than energy of your k beta. That means wavelength of your k beta will be lesser than wavelength of your k alpha. So one will represents me. So this will represents me your k beta and this will represents me k alpha. I hope you got an answer for this one. Clear hai? Is that clear? चलिए थोड़े प्रॉब्लम्स कर लें जल्दी से इस पे. ओके चलिए. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा. आंसर बताइए जल्दी से इसका. The linear momentum of the photon is p. The wavelength of the photon is lambda, isn't it? Then what is the relation between them? Can anyone tell me the answer for this one?
कितने जने दे रहे हैं आंसर? सेकंड ऑप्शन ऑल राइट, लेट्स चेक इट। देन लीनियर मोमेंटम दे रखा है, एनर्जी विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी बेटा, मोमेंटम इनटू सी, दैट विल बी इक्वल टू योर hc डिवाइडेड बाय लैम्डा, यानी p will be equal to h by lambda, isn't it? So wavelength will be equal to how much beta? H by your p. Very good. Second option will be the answer. Second question. If the momentum of the electron is changed by your delta p, then de Broglie wavelength associated with it changes by 0.50%. The initial momentum of the electron will be equal to your how much? चलिए इसका आंसर बताइए कितना होगा, किसी का आया? If the momentum of an electron is changed by delta p and de Broglie wavelength associated with it changes by 0.50%, initial momentum of the electron will be equal to your how much? Wavelength और momentum का relation क्या होता है बेटा? Lambda is inversely proportional to p. As percentage is lesser than 1, yani lesser than of your like very small value, 0.5% is very less. So we can use the error approximation, that is delta lambda divided by lambda is equals to your delta p divided by your p. So इससे हम लोग initial momentum निकाल सकते हैं basically. या इसका जनरल मेथड होता है वो भी निकाल सकते हैं, जैसा मान के चलो जनरल जो प्रोसेस होता है अपने को मैं 1.0 में ले रहा हूं, तो 1.00 wavelength is being changed to your 1.005, isn't it? तो मैं अगर वेवलेंथ का रिलेशन लिख रहा हूं यहाँ पर, लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू योर p2 डिवाइडेड बाय योर p1, isn't it? p इनिशियल कितना होता है बेटा, कोई बताएगा? If the momentum of the electron changes by delta p, de Broglie wavelength associated with it changes by 0.50%. Okay? तो लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी है? 1.00 और लैम्डा 2 की वैल्यू 1.